So welcome, Dr. Intizar Khatri, and today we have doctor with us. So we are going to be tackling a few questions that you may have because since lockdown is easing out, we see a lot of people are coming up with queries and doubts on the use of masks, and they're asking about a lot of things on what diet to do and how to take precautions. So we have Dr. Iltazar Khatri, who is a practicing clinician and is managing patients on outpatient basis. Dr. Intazar, would you like to tell us a little bit about yourself and why did we really think about doing this? Yeah, hi. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Intisar. Uh, I've got good experience in clinical research, and I decided to quit the industry, the pharma industry, to continue clinical practice. So this pandemic, has taken quite a toll on Mumbai. It's the city where most of the cases are happening. So I'm managing patients on outpatient department in the clinic, and with this forum, thank you, Dr. Hema Bajaj, for inviting me for this talk. And the whole idea is to give people the insights of what I've been seeing over this, time that these cases are coming. So, thank you very much for attending or coming, joining this call. And we'll start off with. You guys are well aware of what's happening in the real life, but then we'll specifically talk about what I've been seeing, my experience of patients who are suspected COVID that do come to the clinic, and that's what this session will be all about. Yes. So to start off with, I think let's just start with basics on what are the signs and symptoms of the disease like, and if a normal person like me or my family member are at home, how do they really recognize it? Right. So I think initially when the cases started in earlier in March, that time we were taking history of travel from various countries. So because this was not an indigenic cases that we saw. These cases initially came from outside, which were foreign cases. Most of the people who traveled from outside India, they landed in airports, and then it had a, I would say, a local transmission. So initially, the history, when such suspect cases used to come, we used to take history of travel, like international travel or any travel to the cities where the cases were there. So initially, as Delhi had cases, so we used to ask that, okay, did you travel outside Mumbai and things like that. But now with the recent cases you've been seeing, cases have increased in Maharashtra and specifically in Mumbai. So here it's already gone in the local transmission phase, where you have various wards and pockets of the cities where the cases have been seen. So right now, the symptoms have also changed. Initially, there were a lot of fever that were coming in with the patients who were having fever, and then they were coming in with fever and cough. But as the time has progressed, right now the symptoms, fever does come for a day or two. It is okay. I mean, the patient gets better, but then after that initial phase, there is weakness, there's tiredness, there is loss of taste, loss of appetite. I mean, this is what the common symptoms are these days. And it's very easy for us to, ignore the symptoms because you may say that, okay, it could be a, generalized malaise or, if not taken, eaten well. And it's very common that, people say कि ये थकान है, ये कमजोरी है. I will talk in terms of Hindi also because क्या होता है कि बहुत बार हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कॉमनली ये सिम्टम्स जो है वो हम इग्नोर करते हैं, हम पकड़ते नहीं है। आज के तारीख में सबको पता है कि फीवर आना मतलब इट्स अ साइन, ठीक है, वो थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं बिकॉज़ उनको पता है कि बाहर नहीं निकलना है। तो वो सेल्फ मेडिकेशन से फीवर कम हो जाता है। बट जो सेकंड सिम्टम्स आते हैं वो वीकनेस के आते हैं, फटीग टायर्डनेस के आते हैं, कमजोरी के आते हैं,
भूख नहीं लगती है, और एक इंटरेस्टिंग सिम्टम है जो स्मेल चला जाता है या टेस्ट चला जाता है लोगों का। तो ये ऐसा देखा जाए तो मेडिकली ये नॉन सीरियस होते हैं, मतलब इसके लिए मतलब सिम्टम जब कैटेगराइज करें कि किसको चेस्ट पेन हो रहा है और कंपेयर टू जिसको टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आई वुड से कि वो टेस्ट का जो सिम्टम है वो नॉन सीरियस है। इट इज नॉट गोइंग टू लीड द पेशेंट टू हॉस्पिटलाइजेशन, उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर टेस्ट जाता है तो। बट ये माइल्ड सिम्टम है जो अगर वो बंदे को कुछ है, अगर वो सस्पेक्ट है, तो वो ये प्रोग्रेस होके फिर वो ब्रेथलेसनेस तक जाता है। तो जब ब्रेथलेसनेस आ जाता है तो वो फिर थोड़ा सीरियस माना जाता है। तब तक माइल्ड सिम्टम्स है तो वो मैनेजेबल होता है ऑन ओपीडी बेसिस। तो सिम्टम्स काफी प्रोग्रेस हुआ है। आज के तारीख में आपको ये पकड़ के नहीं चलना होगा कि ठीक है मुझे फीवर नहीं है तो मुझे नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। सिम्टम्स काफी ये हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। जस्ट होल्ड ऑन, आई हैव अ कॉल, जस्ट होल्ड ऑन। So basically, guys, अगर fever नहीं है, that doesn't mean that you will not contract the symptoms of the disease, right? So we have to be more vigilant on our body and see what kind of symptoms are really coming up. So हर एक चीज का ध्यान देना चाहिए। और अगर आपके क्वेश्चंस है इस पे, प्लीज आप ये क्वेश्चंस चैट में डाल दीजिए। सो हम लोग क्वेश्चंस कॉल के टाइम लेंगे। Yeah, sorry, I Yes. had to take a call, patient's call. Okay. So we were talking about the symptoms and you were telling us कि अगर फीवर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता है, and people have to be vigilant on the other aspects that you just spoke about. Right. फीवर के अलावा आई मीन जैसे हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, देर आर सम आई वुड से नॉट कॉमन सिम्टम, बट कभी कभी पेशेंट डायरिया के साथ आता है, उसको और कुछ तकलीफ नहीं होती है, फीवर एक आध दिन आ गया होता है, बट डायरिया सिम्टम रहता है उनका। ओके, तो डायरिया ऐसा देखा जाए तो हम ट्रीट उसको नॉर्मली करते, जैसा रूटीनली करते। बट देन रूटीन ट्रीटमेंट से अगर वो एक दो दिन में नहीं ठीक होता है तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस थोड़ा सस्पिशन आ जाता है कि क्या ये अलग सिम्टम तो नहीं है उसका। तो डायरिया के भी काफी ऐसे सिम्टम्स नजर आए हैं। हेडेक है जो और एक सिम्टम है। यूजुअली हेडेक के बहुत सारे रीजन होते हैं, तो डायरेक्टली हर चीज को सस्पेक्ट करना भी सही नहीं है। सिम्टम्स डिफर काफी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। बस हमें ये ख्याल रखना है कि अगर बहुत सारे सिम्टम सिमिलर हो और बंदा खा नहीं रहा है, कमजोरी लग रही है, स्पेशली इन एल्डरली पॉपुलेशन, वो क्या होता है कि आपको अभी तक तो पता चल गया रहेगा कि जो जिस तरीके से उसका एज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉमनली ज्यादा हावी वो ज्यादा एज है उनको, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है जैसे कि हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अस्थमा में इतने केसेस नहीं दिखाई दिए मुझे, बट वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो हमेशा इग्नोर हो रहा है, जो न्यूज में नहीं आ रहा है, वो है ओबेसिटी। Yeah. ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर वो बंदा जो भी है पेशेंट, अगर उसको उसका वेट काफी ज्यादा है तो वो भी एक रिस्क है। भले उसको डायबिटीज, प्रेशर, ये सब चीजें ना हो, बट वेट ज्यादा होना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जो इतना सुनने में नहीं आता है। उसमें ये वजह है कि जो कैपेसिटी होता है, लंग का कैपेसिटी होता है, वो कम हो जाता है, तो वो ज्यादा रिजर्व नहीं रहता है उसमें। तो अगर थोड़ा भी कुछ हो गया तो वो इतना ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है और वो क्विकली वर्सन हो जाता है। एक एक लिमिट तक वो बर्दाश्त कर पाता है, बट उसके आगे वो एकदम क्विकली डिटेरिएट होता है। तो ये ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हमें ध्यान देना चाहिए, स्पेशली अगर पेशेंट को कुछ कोमॉर्बिडिटी नहीं है बट खाली ओबेसिटी है, उसका वजन काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से उसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। सो ओल्ड एज कोमॉर्बिडिटी की कोई और डिजीज है आपको उसके साथ? और बच्चों के बारे में व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट किड्स? कॉमन है, नहीं इतना कॉमन है, क्या ध्यान रखना चाहिए? या आई थिंक ये बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के बीच के
दे से कि ठीक है, हमको अगर कुछ होता है तो कोई बात नहीं, हम प्रिकॉशन लेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे, बट मुझे हो गया तो ठीक है, मेरे बच्चे को नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे को मैं ये चीज से दूर रख सकूं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है आपको, तो मैं मेरे बच्चे को किसी और के घर भेज देता हूँ। तो मैं उनको मना करता हूँ, मैं बोलता हूँ मत भेजिए, बिकॉज मुझे वो सिचुएशन नहीं पता उस घर में क्या चल रहा है। ओके, आप आपके घर में हो तो आप प्रिकॉशन ले सकते हो, दूसरा बंदा कितना प्रिकॉशन लेगा मुझे नहीं पता। तो मैं यही चाहता हूँ पेशेंट से कि प्रिकॉशंस लीजिए। बच्चों का यूजुअली ऐसा स्टैटिस्टिकली जो डेटा है, उसमें इतने जैसे 1 ईयर टू 12 ईयर्स या जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, केसेस पाए गए हैं। आई मीन इफ यू सी द न्यूज, एक दो साल, एक दो दिन के बच्चों को भी वो पॉजिटिव दिखाई गया है। बट लॉजिक ये है कि इम्यून सिस्टम बेटर रहता है बच्चों में, तो वो हिसाब से इतना सीवियरिटी नहीं होती है। Right. देयर मे बी फ्यू डेथ्स व्हिच हैव ऑकर्ड, देयर मे बी मेनी केसेस वेयर दे हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड, बट ओवरऑल जनरली जैसे हम बात करते हैं, उनमें ये ज्यादातर हावी नहीं होता है। दूसरा, Okay. एक इंडिया का ट्रेंड ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन काफी सफर हुआ है, बट इंडिया का डेटा थोड़ा अलग है। इनमें यंग पेशेंट्स को भी हुआ है। आई मीन पीपल लाइक 28 ईयर ओल्ड, 31 ईयर ओल्ड, ये भी जान गंवा चुके हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे यंग बंदे हैं जो कोविड में जा चुके हैं, इनका कोई कोरमॉर्बिडिटी नहीं था, बट ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे नहीं पता, डेटा मैं नहीं कह सकता हूँ, बट एक चीज मैंने नोट किया है सोसाइटी में, जो यंग बंदे हैं ना, वो थोड़े फियरलेस होते हैं। ओके, उनको लगता है कि ये कोविड कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से भी वो इन्फ्लुएंस होते हैं शायद। उनको लगता है कि नहीं, हमें नहीं हो सकता है, हम फिट है, हमें नहीं हो सकता, हम मास्क नहीं पहनेंगे। अच्छी बात है, मैं ये कहूंगा कि इम्यूनिटी वाइज आपका इम्यूनिटी अच्छा है, आप उसको झेल लोगे। अगर आपको इनकेस होता भी है, आपको एक दो दिन कुछ हुआ हुआ नहीं हुआ, आप असिम्टोमेटिकली उसको झेल लोगे। बट इश्यू ये है कि आप घर जाते हो। ओके, आप घर जाते हो, हमें नहीं पता, ये वायरस नजर नहीं आता है। तो अगर आप असिम्टोमेटिक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, देर इज सम चांस कि आप ये ट्रांसमिट किसी को कर दो। घर में कोई छींक आ गई, आपने कुछ टॉवल यूज कर लिया, किसी और ने भी वो कॉमन टॉवल यूज कर लिया, यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है, उनको ये रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप बिना मास्क के ऐसे घूमोगे तो आपको तो कुछ नहीं होगा, यंग हो, आप हेल्दी हो, आपका इम्यूनिटी अच्छा है, आपको नहीं होगा। लेकिन आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको हो सकता है किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज हो, तो उनको ये रिस्क बढ़ जाता है आपकी लापरवाही से। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि यंग है, ठीक है, वी नो दैट यू आर स्ट्रांग इम्यूनिटी वाइज, डू टेक केयर। आप बाहर जाते हो जाओ, लेकिन प्रिकॉशन लो। आप कैरियर मत बनो, हमें नहीं पता ये आपको कब लग सकता है, नहीं लग सकता है, बट ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो क्यों हम मास्क पे भी, तो लेट मी जस्ट आस्क फ्यू थिंग्स अराउंड इट। सो ये मास्क जो आपने पहना हुआ है, ये कितना घंटा पहन कितना? सकते हैं? how many hours can you wear the mask? देखो, मैं क्लिनिक ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स करता हूँ। आई वेयर डबल मास्क। ओके, आई एम नॉट वेयरिंग एनी N95। N95 इनिशियली तो मिल ही नहीं रहा था, तो आई एम वेयरिंग दिस डबल मास्क। दिस इज अ डिस्पोजेबल मास्क। ओके, दिस इज यू गेट दिस एनीवेयर इन द मेडिकल शॉप। अभी मास्क के भी अलग अलग तरीके के मास्क आ चुके हैं। एक जो है N95, वो मल्टीपल लेयर होता है, दैट इज अ गॉट द बेस्ट प्रोटेक्शन। अगर वो नहीं मिलता है आपको, तो ये डिस्पोजेबल मास्क है, सर्जिकल मास्क एज वी कॉल इट। तो ये सर्जिकल मास्क आप यूज कर सकते हो। मैं, क्योंकि मैं क्लिनिक में हूँ, मैं पेशेंट्स मैनेज करता हूँ, तो आई हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, तो मैं दो पहनता हूँ। N95 मैंने पहना नहीं है। और ऐसे भी केसेस आए जो हॉस्पिटल में आपने देखे रहेंगे, डॉक्टर्स पीपीई किट पहनने के बावजूद उनको हुआ है। तो ऐसा कोई फुल प्रूफ नहीं है कि Right. पीपीई किट पहनोगे तो होगा, एंड इट इज वेरी अनकंफर्टेबल।
इफ आई एम वर्किंग 8 आवर्स, अगर 8 घंटा काम कर रहा हूँ पीपीई किट में, तो मेरे को माइल्ड यू नो सो टू से डिहाइड्रेशन तो हो जाएगा, इतना पसीना हो जाता है, इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है उसमें कि इट इज इम्पॉसिबल ऑन अ डेली बेसिस ऑन मेनी वर्किंग आवर्स। तो आई फाउंड कि ये मास्क मुझे सूट करता है। देर इज सम मास्क विच हैव दिस व्हाट यू कॉल दिस प्लेट हियर वेयर यू कैन पिंच, इट इज मैलिएबल थोड़ा, Yeah. तो ये नाक को बराबर You से can कवर करता pinch है। it कुछ here. मास्क में ये होता नहीं है, कुछ मास्क में ये होता नहीं है, तो देर इज अ गैप बिटवीन द आईज। तो वो Hmm. ऐसा देखा जाए तो ओपन एरिया है, ससेप्टिबिलिटी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, बट ओवरऑल यू शुड ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि ये वाला मास्क लो जो आप थोड़ा ये मैलिएबल कर लो, तो ये कॉन्टूर बराबर फिट हो जाता है। दूसरा है, जो मास्क Right. रेगुलरली यूज नहीं करता है, वो बोलते वक्त ना उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना वो बात करते हो वो नीचे करके बात करते हैं, तो अगेन दैट इंक्रीजेस द रिस्क। आप मास्क पहनते हो, आप फिर से वो इंक्रीज कर रहे हो टचिंग। मैं जब मास्क निकालना होता है तो आई नेवर टच ईयर, ओके। मैं कभी भी ऐसा सेटिंग करना है, कुछ चेंज करना है, तो मैं नहीं करता हूँ। मैं इसका जो स्ट्रिंग्स है वो निकालता हूँ, ओके। आई जस्ट रिमूव द स्ट्रिंग्स, अगेन आई ट्राई टू वेयर, दैट्स इट। एंड थोड़ा बहुत यहाँ से साइड से मैं उसको टच करता हूँ, मैं सामने बिल्कुल नहीं टच करता हूँ। दैट इज व्हाट यू नीड टू मेक अ प्रिकॉशन। अभी इसका फायदा तो है, बट यू ऑल्सो हैव द हेड गियर। अभी Yeah. हेड गियर, सी अगेन मास्क विल नॉट कवर योर आईज। अभी कुछ आ गया आपको, आपने उंगली डाल दिया, आपका अगर फिंगर थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड है, अगर अपने आईज में रब कर दिया, तो देयर इज अ चांस वो कंजंक्टिवा से भी पास हो सकता है, नॉट जस्ट नोज एंड माउथ। तो उसके लिए एक हेड गियर है, आई जस्ट शो यू। Basically, till he gets the headgear, masks जब आप पहनते हैं, don't touch the front of the mask. Take the strings from the side and wear it, and take the strings from the side and remove it. Just adjust it lightly from the side. ठीक है? सामने से हाथ avoid कीजिए रखना, because you are contaminating the mask with your hands per se. Single mask is okay unless you are working in a clinic or exposed to a high risk scenario. Otherwise, wear double mask. Okay, Okay, right? this is the head gear. This Or is the the head gear. face This is, shield, whatever yeah, you call it. face Yeah, shield. तो ये ऐसा है कि यहाँ से you have this, buckle है पीछे जो आप insert कर सकते हैं and then adjust it according to your head size. okay. तो दिस इज अ हेड गियर। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आईज कवर्ड होते हैं, ओके। अगर किसी ने खांस दिया या आपने हाथ लगा दिया, तो यहाँ पे हेड गियर पहनने से आपको नहीं होगा, वो ऑप्शन नहीं जाता है। एंड दिस एंटायरली कवर्स योर एंटायर फेस, ओके। और इसका जो नीचे का बॉर्डर है ये काफी नीचे तक रहता है, आपके चिन लेवल के नीचे तक का है। Right. तो अगर कोई सामने से ब्लो कर दिया, खांसी कर दिया, तो इट इज इट विल बी डिफ्लेक्टेड। देर Right. इज हाई लेस चांसेस दैट वो नीचे से आपके नाक में जाए, बिकॉज दिस इज एंटी ग्रेविटी, ओके। तो इसमें मुश्किल है। अगर आप मास्क पहनते हो और ये भी पहनते हो, तो इट इज गुड इनफ प्रिकॉशन, एज आई वुड नॉट से ये कम ये करता है, प्रोटेक्शन देता है, बट आई वुड से वो पीपीई के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो मेरे हिसाब से। पीपीई ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन इतना भी प्रिकॉशन लेना काफी हद तक सही है। So दूसरे तरीके doctor, के मास्क होते हैं, हेमा, जस्ट टू कवर दिस yeah, मास्क पॉइंट, yeah, एक दूसरे किस्म के मास्क होते हैं जो क्लॉथ के होते हैं। मतलब आप कभी कभी मेडिकल शॉप में जाओ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, जब मेडिकल शॉप में जाता हूँ मास्क लेने के लिए, तो वो मुझे ना वो ग्रीन कलर का जो सर्जिकल जो सर्जरी हम करते हैं, वो ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का मास्क देता है और बोलता है कि साहब ये है मेरे पास, और मैं मना कर देता हूँ, मैं बोला ये नहीं चाहिए मुझे। वो सर्जिकल मास्क है, बिकॉज वो सर्जरी हम करते हैं, ऑपरेशन जब करते हैं, तो ब्लड या फ्लूइड कुछ उड़े नहीं, पस उड़े नहीं, ये उसके लिए होता है। अच्छा, एक्चुअली हमने, मेरे यहाँ माइक्रोस्कोप है, मैंने माइक्रोस्कोप के जूम में देखा है उसके कितने जो मैग्निफिकेशन करके मैंने देखा है, उसमें काफी हद तक यू हैव होल्स, ओके, आई कैन क्लियरली सी द होल्स।
तो मैं अगर 40x जूम पे वो होल दिखाई देता है तो डेफिनेटली वो वायरस तो वहां से निकलने ही वाला है, वो बचने नहीं वाला है। दिस इज फार राइट। मोर बेटर। और तीसरा जो मास्क होता है वो क्लॉथ, जो होजरी का कपड़ा होता है उसका क्लॉथ आजकल लोग पहनते हैं, रीयूजेबल है, वो लोग उसको बनाते वॉश भी करते है हैं, या। बनाते भी है। राइट। ठीक है, अच्छी बात है। होजरी का कपड़े का ये प्रॉब्लम है कि वो जब अ, पहनते हैं ना तब वो स्ट्रेच हो जाता है। तो जब कपड़ा स्ट्रेच होता है तो उसके जो क्रिस क्रॉस जो थ्रेड्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उसका गैप जो है वो बढ़ जाता है। ओके। तो वो भी हमने माइक्रोस्कोप में देखा है, जूम करके उसमें भी नजर आते हैं। तो ओके। फिलहाल अब ये हर बार ये मास्क पहनना इट्स नॉट ऑलवेज फिजिबल ऑल्सो, क्योंकि हर बार आपको रीयूजेबल है, इसको भी कुछ लोग धो के पहनते हैं। आई डोंट एडवाइज हाँ। दैट। मैं या। डेली यूज करता हूँ, वो मैं डेली फेंक देता हूँ। और मैंने अभी न्यूज में ये भी देखा था कि कुछ लोग इसको जो थ्रो कर देते हैं उसी को बेचते हैं फिर से। तो मैं अभी इंश्योर कर रहा हूँ कि जब भी ये मैं थ्रो करूँ तो मैं सीजर से काट के थ्रो करूँ, सो दैट इट इज ओके। नॉट यूज्ड अगेन। ओके। सो इफ पीपल वांट टू यूज क्लॉथ मास्क, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? क्योंकि मेनी कांट अफोर्ड टू बाय अ न्यू मास्क डेली और रीयूज करना है क्लॉथ मास्क, तो वो कैसे करेंगे? तो ये एक मैं चाहूंगा कहना कि जैसे मुस्लिम औरतें हैं, ये बुर्का पहनती है। तो काफी बार ऐसा होता है कि मैं पूछता हूँ मास्क किधर है, तो बोलते नहीं हमारा नकाब है। तो दैट इज नॉट राइट। वो काफी ट्रांसपेरेंट या थिन मटेरियल का होता है। अगर आप क्लॉथ का कुछ यूज करना चाहते हैं, इंश्योर कि वो अच्छा डेप्थ का हो, इन द सेंस कि वो थोड़ा थिक हो। और ओके। हो सके तो वो आप बराबर से जैसे लपटते हो, जैसा गर्मी में मैं देखता हूँ गर्मी से बचने के लिए वो बांधते हैं, वैसा अगर एक दो लेयर भी अगर बांधे तो दैट विल गिव यू मच प्रोटेक्शन। सिंगल वो दुपट्टे से उससे इतना प्रोटेक्शन नहीं नहीं। मिलेगा। क्लॉथ अगर यूज करना है तो आप चाहे तो 2 या 3 राउंड बांध सकते हो, सो दैट इट इज बेटर देन अ सिंगल लेयर। ओके। और जो रीयूजेबल क्लॉथ मास्क यूज करते हैं, हाउ ऑफन पीपल शुड वॉश इट? बिकॉज मेरे सर्कल में मैंने बहुत बार देखा है कि लोग वही मास्क 2 दिन पॉकेट में लेके घूमते हैं और जब चाहिए पॉकेट से निकाल के पहन लेते हैं। देखो, ये इसका सवाल सही है आपका। मेरा जवाब थोड़ा हटके है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो इकोनॉमी ओपन होने की बात हो रही है, ये बेसिकली या लॉकडाउन ओपन होने की बात हो रही है, बेसिकली लॉकडाउन इकोनॉमी की वजह से ओपन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केसेस कम हो रहे हैं। तो क्लॉथ यूज करना आप कर सकते हो, उसको धोना करना वो आप मेंटेन कर सकते हो, बट इंश्योर कि आप लाइट में जाके थोड़ा वो क्लॉथ को स्ट्रेच करके देखो। अगर आपके लाइट वहां से पास हो रही है तो डेफिनेटली वो एक सिंपल मेथड है, आप चेक कर सकते हो। लाइट में जाओ, मास्क को देखो, और उसमें से लाइट नजर आ रही है, मतलब वो इतना उसका सही है। थ्रेड डेप्थ नहीं है। तो ओके। इंश्योर करो कि आप ऐसा कुछ यूज करो जिसमें लाइट पूरा ब्लॉक हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सो दैट एटलीस्ट यू कैन बी अश्योर्ड के ये कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देगा मुझे। ओके। सो बेसिकली नेक्स्ट टाइम जब आप क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं, उसको लाइट में देखिए और चेक कीजिए कि कितना लाइट दिख रहा है, कितना पोरस है बेसिकली, एंड देन यू विल गेट टू नो efficient or so efficient. Um, Also, I wanted you to touch base upon some facts around COVID disease, कि इसमें क्या सही है क्या नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये एयरबॉर्न है, बहुत लोग कहते हैं कि ये छूने से फैलता है, कुछ लोग कहते हैं ये ड्रॉपलेट है। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट, एंड व्हाट precautions should normal people who are not at risk, as in they are not exposed to patients like doctors are, what precautions should they take? देखिए, अभी तक तो आई थिंक सब लोग को हैंड सैनिटाइजर इस चीज की तो मालूमात हो चुकी है। तो जैसे पेशेंट जो होता है उसका सिम्टम कॉफ है, तो कॉफ में वो बंदा खांसता है तो वो ब्लो, जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ब्लो होते हैं, तो वो उसके वजह से वो ऑब्जेक्ट से वहां पे अगर लग गया वो, और वही ऑब्जेक्ट किसी ने टच किया तो उसके हाथ में लग गया। अभी ये बंदा
अगर उस चीज से अगर वो कुछ नाक पे टच करता है या मुंह पे टच करता है तो वो बेसिकली एंट्री पॉइंट्स हो जाते हैं, या आई पे टच कर लिया तो वो एंट्री पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये होता है, ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है, जिसमें कुछ प्लेसेस पे जहाँ पे ऑलरेडी वो वायरस ऑब्जेक्ट्स पे चिपका हुआ है, बिकॉज समवन हैड कॉफ देयर और यू नो हैड सम कांटेक्ट देयर, तो उस वजह से ये कांटेक्ट ट्रांसमिशन होता है। दूसरा, जैसा पेशेंट कोई है जो खांस रहा है, उसके घर वाले हैं साथ में, तो अगर मास्क यूज नहीं कर रहा है घर पे, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, एरोसोल इन्फेक्शन, एरोसोल के थ्रू वो ट्रांसमिशन हो सकता है। नेजली वो ब्रेथ लेगा तो वो ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसी वजह से मतलब ये कॉमनली रास्ते हैं जहाँ से ये ट्रांसमिशन होता है। अब ये कितना एयरबोर्न है, हमने देखा है न्यूज में, रिसर्च में भी बोला गया है कि काफी एयरबोर्न है। कोई बोलते हैं कि 6 फीट होना चाहिए, कोई बोलता है कि 3 मीटर होना चाहिए। तो ये काफी वेरिड है। ये एक डिस्टेंस देना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन में। बट एक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड है कि जैसे देर आर, मुंबई जैसी सिटी है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट्स, काफी सारे चौल एरिया है जहाँ पे कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। तो ऐसा बीएमसी ने जैसे देखा है, उन लोग, उनका उनका जो क्वारंटाइन का भी कहते हैं ना कि क्राइटेरिया जो होता है, उसमें एक ये चीज नोट में आती है कि वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपका कॉमन टॉयलेट है या आपका इंडिविजुअल अपार्टमेंट में या रूम में टॉयलेट है। बिकॉज उसके बेसिस पे वो क्वारंटाइन फैसिलिटी डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये बंदा एक कॉमन टॉयलेट यूज करता है तो वो ट्रांसमिशन, एयरबोर्न हो या कांटेक्ट हो या जो भी हो, उसके थ्रू वो ट्रांसमिशन होता है। तो आपका सवाल आंसर करने के लिए मुश्किल है मुझे कि ये क्या डिस्टेंस तक जा सकता है, एयरबोर्न है नहीं है। डेफिनेटली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। ये डब्ल्यूएचओ की तरफ मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन है कि काफी लेट बताया गया है। प्रोबेबली ये पहले अगर कुछ प्रूव किया होता तो ये पहले हमें पता चलता, because transmission definitely, ये contact और aerosol, these things, it does happen। फैमिली में अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, मास्क तो पहनना चाहिए, बिकॉज अगर वो खांसता है बंदा तो वो ट्रांसमिट कम करेगा विथ मास्क। तो ये सब चीजें मैटर करती है। मैं आपको एक डेफिनेट नंबर या डिस्टेंस नहीं दे सकता हूँ कि इतना मेंटेन करना है, बट अगर एनवायरनमेंट अगर क्लोज्ड है, ओके, तो उस चीज में देर इज मोर चांसेस दैट ऑब्जेक्ट्स में वो पड़ा रहेगा, या इन वायरस वहां पे स्टिक हो गया रहेगा, तो किसी और बंदे ने हाथ लगाया नहीं लगाया तो उससे चांसेस होते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आया है यहाँ जो पूछ रहा है, डू वी नीड टू मास्क व्हेन नो वन इज अराउंड। तो अगर आगे पीछे कोई नहीं है, हम लोग नीचे वॉक कर रहे हैं, फिर भी मास्क पहनना चाहिए कि जरूरत नहीं है? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे हिसाब से इतना तो साइंटिफिकली बताया गया है कि मास्क पहनने से आपका ट्रांसमिशन कम होगा। अब हमें ये चीज दिखाई नहीं देती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये है नहीं है, कहाँ पे नहीं है, ये बोलना मुश्किल है। तो ओपन एयर में डेफिनेटली हमको डिटरमाइन करना मुश्किल है कि ये एयरबोर्न जितना डिस्टेंस पे जा सकता है नहीं जा सकता है। बट आई थिंक अगर प्रिकॉशन, हम काफी प्रिकॉशन ले, तो मास्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ स्टिग्मेटिज्म है इसमें कि ये बंदे ने मास्क पहना है तो इसको कुछ है, ऐसा ये आप मत सोचो। हम हमारी प्रिकॉशन के लिए वो मास्क पहन रहे हैं ताकि हमको कुछ लगे नहीं, और अगर हमको है तो हमको दूसरों से लगे नहीं। बस ये ही दिमाग में रख के हमें मास्क पहनना चाहिए। ये दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई क्या बोलता है, बिकॉज ऐसा भी कभी कभी यंग एज जो दोस्त होते हैं, वो मिलते हैं तो कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है, फिर वो उसको ऐसा बोलता है कि भाई तू डर गया, तू फट्टू है। ये कॉमन, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है, ये हो रही है सोसाइटी में, ये हो रही है। अब बंदा अगर प्रिकॉशन ले रहा है ना, तो भी उसके दोस्तों के सामने थोड़ा बेइज्जती बचाने के लिए या मजाक उसका नहीं उड़ाए लोग, तो वो थोड़ा निकाल के चलता है। तो आई थिंक यू शुड नॉट बी बॉदर्ड। मास्क पहनने से इट इज एडवाइजेबल। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप अकेले में भी जाओ तो मास्क पहनो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे कोई आपको ये नहीं होगा, इनफैक्ट इट विल गिव यू प्रोटेक्शन। अब वो है नहीं है वो बोलना मुश्किल है, राइट?
और एक क्वेश्चन है जो कह रहे हैं कि व्हेन आई गो टू बाय वेजिटेबल्स, जब मैं सब्जी लेने जाता हूँ मैं मास्क पहनता हूँ, तो क्या चांसेस है कि मुझे वायरस कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फेस शील्ड पहनना चाहिए कि जरूरत नहीं है जब आप सब्जी लेने जा रहे हैं? ओके, तो सब्जी लेने जाना है। आई थिंक देखो, सब्जी वाला भी एक इंसान है। वो हमारे जितना शायद इतना एजुकेटेड ना हो, लेकिन वो बंदा हमें एसेंशियल सर्विसेज दे रहा है और उसके पास लोग आते हैं। ओके, तो अब वो उसका काम ये है कि उसको सब्जी देना है। उसके पास 50 लोग 100 लोग जो आते हैं, वो सब्जी देता है, वो चले जाते हैं। अब ऐसा भी नोट में आया है कि वो सब्जी वाला या जो वेंडर है, वो एक कैरियर भी हो सकता है, बिकॉज उसको कहीं और से भी लग सकता है। तो हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो खांसे, मतलब सब्जी वाला ऑब्वियसली वो जो देता है, उसमें कांटेक्ट ट्रांसमिशन का ज्यादा चांसेस है देन दी एरोसोल। या वो, हाँ, तो कांटेक्ट ट्रांसमिशन में आपको ध्यान देना है कि आपको सैनिटाइजेशन यूज करना है, आपको घर जाके हो सके तो वॉश करना है। मेरा ऐसा है कि जब मैं क्लिनिक से रिटर्न जाता हूँ तो मैं बिना कुछ टच किए डायरेक्टली बाथरूम जाता हूँ। आई मीन आई जस्ट गो फॉर द शावर। तो आई डोंट टच, एंड दिस ऑल द स्पेसिफिक थिंग्स, मेरे जो मटेरियल्स है, जो मैं वॉलेट है, कीज है, तो वो मेरा एक डेजिग्नेटेड जगह है, एंड दैट्स ऑन टॉप। ठीक है, वो कोई नहीं टच करता मेरा। मैं ये सब प्रिकॉशन लेता हूँ कि ये आई इनएडवर्टेंटली डोंट इन्फेक्ट। तो सब्जी वाले पे भी जब बात आती है, तो मेरे हिसाब से वो कांटेक्ट का जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा रहता है रेदर देन एरोसोल, या ये जो अपना इससे होता है ट्रांसमिशन, जो एरोसोल से होता है या एयरबॉर्न खांसने से से जो होता है। होता है, या बेसिकली। तो आपको वो सब्जी वब्जी क्लीन करना है, धोना है। आपको आपको वो सब मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। हो सके तो शावर ले लो, हैंड्स बराबर सैनिटाइज करो, साबुन से धो। मैं तो बोलता हूँ कि आपके पास अगर साबुन है घर पे हो, तो अच्छे से 20 क्या 30 सेकेंड्स तो आप करो, क्लीन करो बराबर से, और दैट शुड बी इनफ। और जो प्लास्टिक बैग है, उसको आप डिस्कार्ड कर दो, उसको रीयूज मत करो। यू नेवर नो। ओके, अच्छा, उसको आप डिस्कार्ड कर दो। ओके। और एक क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वेयर ग्लव्स टू व्हाइल गोइंग आउट? ग्लव्स पहनना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या वो भी हेल्प करेगा? ग्लव्स का मामला जो है, देखो, अभी हम मेडिकल फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं, तो ग्लव्स पहनना हमें अच्छे से आता है। कैसे उसको यूज करना है वो अच्छे से आता है। मैंने काफी लोग को देखा है जो काफी प्रिकॉशियस होते हैं, वो ग्लव्स पहनते हैं। बट ग्लव्स में इश्यू ये होता है कि जैसे हैंड्स ओपन है, आप साबुन से हाथ धोते हो, आप क्लीन कर सकते हो अच्छे से। ओके, हर एक एरिया आपका साबुन में 20 सेकेंड 30 सेकेंड रहा, तो वो वायरस अगर हो तो मरना ही है। अब ग्लव में इश्यू ये आता है कि अगर आप साइज, आपको नहीं पता है आपका साइज क्या, आपने ले लिया, अगर आपका हाथ छोटा है और ग्लव्स बड़ा है, तो वो एक फोल्ड आ जाता है उसमें। ओके, फिंगर्स के हैं या पाम के हैं, ये जब क्लीन करते हो, सैनिटाइजर लगाते हो, तो एक ओवरलैप हो जाता है वो ग्लव में। तो वो एक एरिया जो होता है, वो फिर भी शायद सैनिटाइजर नहीं लगा हो, सोप नहीं लगा हो उस एरिया में, तो वो थोड़ा एक हल्का सा रिस्क है। जो हो सकता है कि वो वायरस वहां पे हो और वो क्लीन नहीं हुआ हो, और आपने किसी पे टच कर लिया या कुछ हो गया, तो ये माइनर सा चीज है जो ग्लव्स में होता है। अगर आप अगेन, वो एक ग्लव आप एक दिन चलाओ, वो भी बोलना मुश्किल है। डिपेंड करता है कि आप क्या कितना कांटेक्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ग्लव पहन लिया तो आपको नहीं हो सकता है। आई थिंक यूट्यूब में एक नर्स ने वीडियो पोस्ट किया था, जिसने उसने दिखाया था कि ग्लव पहनने से वो इंफ्रारेड या कुछ यूज करके उसने बताया था कि देखो फिर भी वो काफी हद तक उसको इन्फेक्ट, या वो जो उसने सोल्यूशन या पाउडर लगाया था, वो अलग अलग जगह पे उसको फिर भी नजर आया था। तो आई वुड से, मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं ग्लव, आई वुड प्रिफर हैंड। मैं फ्रीक्वेंटली हर पेशेंट के बाद मैं वॉश करता हूँ, बिकॉज वो मुझे कंफर्टेबल लगता है। और सैनिटाइजर मेरे पास है, so I use the sanitizer after seeing every patient. Then there is क्लीन करने के लिए, ये जैसा एग्जामिनेशन बेड है, तो यहाँ पे मैं हर पेशेंट के बाद में वो क्लीन करने के लिए यूज करता हूँ।
तो बेसिक प्रिकॉशन लेना है। अभी साइंटिफिकली इतना बोल नहीं सकते, इट्स केस टू केस बेसिस के ग्लव में आप फिर भी उसमें कुछ चांसेस है ट्रांसमिशन का, थोड़ा तो ट्रांसमिशन है। बेसिकली अगर आपको हाइजीनिकली ग्लव हैंडल करने आता है तो आप पहन सकते हैं, फिर भी श्योर शॉट नहीं कह सकते वेदर इन्फेक्शन हो या ना। द अदर क्वेश्चन दैट वी हैव इज once we see symptoms in one of our family members, what is the precautions or what are the next steps others have to do? तो अगर हमने देखा कि हमारे फैमिली मेंबर को ऐसा सिम्टम्स आ रहा है जो हमको सस्पेक्ट होता है कि शायद कोविड हो, तो क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है ना, ये कोविड फिजिकली जो मतलब सिम्टम्स है ना, इसमें एक और कंपोनेंट है जो मेंटल एगोनी होता है, या लोग काफी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। अभी व्हाट्सएप पे न्यूज में इतना सब कुछ देखते हैं, हॉस्पिटल बेड फुल है, तो वो काफी डर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला तो सिम्टम अगर ऐसे कुछ आते हैं माइल्ड, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको एकदम फ्रीक आउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने सिम्टम्स राइट। आपको बताया है, जैसा थ्रोट पेन है, कफ है, फीवर कभी आ गया, तो नॉट नेसेसरी कि ये सब कोविड ही होगा। बट कंसिस्टेंटली ये जैसे नजर आ रहा है, 2-3 दिन तक है, सेल्फ मेडिकेशन किया, नहीं आराम हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ये प्रोग्रेशन इसका जो है ब्रेथलेसनेस का, ये काफी हद तक अगर ठीक नहीं होता है तब वो ब्रेथलेसनेस पे जाता है। राइट। इनिशियली अभी आज के तारीख में जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट इज लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, वीकनेस, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। फीवर कभी आ गया तो आ गया, बॉडी एक है तो है, हेडेक है तो है, डायरिया तो है तो है। तो ये इनिशियली आपको ऑब्जर्व करना है, ऐसा 1-2 दिन देखो कैसा लगता है, सेल्फ मेडिकेशन करके घर में जैसे नेचुरोपैथी है, आप फ्रूट, हेल्दी फूड खाओ, नेचुरल डाइट लो। तो ये सब चीज़ों से इतना नहीं होगा। हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसको माइल्डली सिम्टम होगा, वो कुछ ऐसा सीवियर तक नहीं पहुंचने वाला, अनलेस वो इग्नोर काफी कर चुका है अपने हेल्थ को। बट अगर एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब कोई बुजुर्ग है हमारे घर में और उनको ऐसा कुछ होता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई डॉक्टर से सलाइन नहीं लगाना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने केसेस ऐसे देख चुका हूँ कि सिम्टम पेशेंट के ये थे कि कमजोरी, भूख नहीं लगना, कमजोरी लगना, जो 60-65 ईयर के पेशेंट थे उनको हुआ था। तो उनके फैमिली मेंबर ने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, ये सादा है, इनको सलाइन लगाओ। और 2 सलाइन के बाद में उनका सिचुएशन वर्स हो गया। ओके, तो क्या होता है कि अगर वो कोविड सस्पेक्ट केस है, तो बेसिकली ये लंग का मसला है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर की बात करते हैं, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है एपिथेलियल लेवल पे, वहां का मसला है। अगर उसके वजह से आप सलाइन देते हो, फ्लूइड ओवरलोड करते हो, तो वो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से ये सिचुएशन वर्सन होगा। और मैंने ऐसा केस देख चुका हूँ जो अनफॉर्चुनेटली दैट लेडी एक्सपायर्ड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, बट उसमें ऐसा ही सिनेरियो हुआ था जहाँ पे उसको 2 सलाइन लगाए थे और उसके बाद में काफी घंटों बाद उसका सिचुएशन वर्सन हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई यूज इन क्लिनिक इज दिस इज अ पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमीटर। ये बहुत क्रिटिकल और बहुत फायदेमंद चीज है। आई हैव बीन यूजिंग दिस, दिस इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोर ऑफ व्हाट आई विल बी एबल टू मैनेज द पेशेंट। ये जैसे मैं फिंगर में लगाता हूँ और मैं ये ऑन करता हूँ, आई डोंट नो आपको नंबर दिखाई दे रहा है? हाँ, we can see. ओके उल्टा ओके, दिख रहा सो है, पर दिख रहा है हाँ, एक 97, या दिख रहा है 98, सी 99। 99, ओके, या सो यहाँ पे अलग अलग मशीन होती है, रीडिंग्स अलग अलग होती है। इसमें आप सैचुरेशन देखना, SpO2, मतलब ये 99 जो है, ये बेसिकली सैचुरेशन बताता है कि मेरा जो लंग में ऑक्सीजनेशन जो होता है, एक्सचेंज हो रहा है, वो कितना हो पा रहा है। 99 इज गुड, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर वो 95 तक भी जाता है देन ऑल्सो इट इज फाइन। अगर वो कोमॉर्बिड पेशेंट है, कुछ उसको पहले से कुछ तकलीफ है थोड़ा बहुत, तो आई थिंक 95, 97 ऐसे भी ठीक है, माइल्ड बोला जाएगा।
बट अगर वो 90 के बाद जाता है, 90 के नीचे जाता है, तो वो प्रॉब्लम ब्रेथलेसनेस आ जाती है बंदे को। मेरे जितने एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो 92 93 पे जाता है तो ब्रेथलेसनेस आ जाता है। और बात ये है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था अपने ऊपर। मैंने ये लगा के मैंने ब्रेथ होल्ड किया। ओके, मैंने ब्रेथ होल्ड किया। मैं बोला कि देखूं अगर ब्रेथ होल्ड करने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये सैचुरेशन कितना कम होता है, ये मैंने देखा। तो मैं ब्रेथ होल्ड, अब पता नहीं कितना सेकंड, मैंने शायद 40 सेकंड्स कुछ होल्ड किया रहेगा, और ये सैचुरेशन मेरा 93 94 तक गया। और उसके बाद जब मैं सांस छोड़ा तो मैं बहुत ब्रेथलेस हो गया था। तो यू कैन इमेजिन कि जो पेशेंट है जिसका रीडिंग 93 94 आता है तो उसको ब्रेथलेसनेस कितना होगा। और गाइस, पर ये अगर घर पे ट्राई करना नहीं है आपको, ये हाँ, ये इनसाइड। बिल्कुल नहीं ट्राई करना है। दिस इज जस्ट टू गेट सम एक्सपीरियंस के हाउ डज इट फील व्हेन यू Yeah. यूज So होल्ड योर ब्रेथ। somebody is even asking that is it important to keep the pulse oximeter at home? क्या हम ये ऑक्सीमीटर घर पे रख सकते हैं? देखो, अभी ये जो बात है ये पल्स ऑक्सीमीटर की, अब ये चीज मेरे पास पहले से ही थी, मैं क्लिनिक में रखता ही था। अब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ गए ना, जैसे हैंड सैनिटाइजर, मैं देख रहा हूँ अलग अलग कंपनी के, जो मैंने सुना भी नहीं है कभी कंपनी के वो लोग मार्केट कर रहे हैं। तो अभी पल्स ऑक्सीमीटर ये जो स्टैंडर्ड है, वेरियस मॉडल्स है, उसमें अभी क्वालिटी वाइज कितना सही है कितना नहीं है, कितना एक्सपेंस है, मुझे नहीं पता। अभी करंटली ये मे बी 2000 3000 का भी आता है, 1-1.5 हजार का भी आता होगा, मुझे नहीं पता। बट आपको रखना है तो डोंट साइक आउट कि हाँ भाई मुझे अभी 2-2 घंटे में चेक करना है, ऐसा नहीं। मैं ये एडवाइस करूंगा कि ये लेना, आई डोंट नो इफ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट, बट आपके सोसाइटी, जैसे आप सोसाइटी में रहते हो, आपकी सोसाइटी की कमिटी है, तो प्रोबेबली आप सोसाइटी में एक लेके रखो। और जैसे विन्यूरेबल पॉपुलेशन है, जो बूढ़े बुजुर्ग है या जिनके पास कुछ कोमॉर्बिडिटी है, तो आई थिंक वो सोसाइटी में कोई ना कोई एक डॉक्टर तो होगा, आपके एक सोसाइटी में कोई ना कोई तो डॉक्टर होगा, तो उसको इन्वॉल्व करके आई थिंक ये एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक कि सैचुरेशन कम है तो आपको कोविड है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत सारी अलग कंडीशन में भी थोड़ा कम हो सकता है, तो इट्स नॉट डायग्नोस्टिक, बट ये एक इंडिकेटिव है हमारे लिए। जब हम पेशेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लेवल ऑफ ब्रेथलेसनेस उसका क्या है। तो प्रोग्नोसिस के लिए भी देख सकते हैं, जैसा पेशेंट ठीक हो रहा है तो हमको पता चल जाता है कि ओके इसका सैचुरेशन भी बढ़ रहा है, कंडीशन क्लिनिकल कंडीशन भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अंदाजा आ जाता है कि इम्प्रूवमेंट है नहीं है। तो आई थिंक सब हर कोई लेने गया तो ये मार्केट में मिलने वाला है नहीं। हर कोई यही चीज खरीदने गया तो वो मिलेगा नहीं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका सोसाइटी है तो उसमें अगर एक ले लो और ऐसा स्क्रीन कर लो आप, तो वो बेहतर रहेगा। तो मास स्क्रीनिंग के हिसाब से इफ योर सोसाइटी टेक्स वन फॉर एवरीबॉडी देन दैट शुड बी गुड। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ कि N95 मास्क अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो कितने दिन तक हम यूज कर सकते हैं? ओके, उसमें तो वो रीयूजेबल है, आई मीन वॉशेबल है, तो अगेन उसमें वॉशिंग कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग घस घस के धो देते, मतलब उसके पूरे रेशे निकाल देते, तो वैसा भी नहीं करना है। मतलब यू आर डैमेजिंग, आई मीन यू आर क्लीनिंग बट यू आर ऑल्सो डैमेजिंग दैट थिंग। तो मेरे हिसाब से अगर अच्छे से आप यूज करो उसको तो महीना तक निकाल सकते हो। ओके, अगेन आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि आप आगे ना टच करें, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल रिमूव द मास्क लाइक दिस, जैसे डॉक्टर इंतजार ने दिखाया, होल्ड योर स्ट्रिंग्स एंड रिमूव द मास्क लाइक दिस। ओके, ये अगेन देखो, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपको वो N95 से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका एरोजोल है या जो भी एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, जो भी आपको, वो मास्क में आके वो फिल्टर हो गया, मतलब वो फिल्टर नहीं हो पाया, आपके नाक या मुंह में नहीं गया, वो यहीं पे आके चिपक गया। अभी आप उसको यहाँ पे हाथ लगा रहे हो, फिर निकालने के बाद आप वो कॉन्टैक्ट हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तो वो मास्क लगाने के बावजूद होगा। तो अपना एम ये है कि हमें ये हो ना, तो मास्क लगाना ठीक है, वो आपको एयरबॉर्न है वो प्रोटेक्शन देगा, लेकिन आप उसको मास्क को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, हाथ लगा रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। एयरबॉर्न आप बच जाए, लेकिन कांटेक्ट से आपको हो सकता है।
तो कोई ये भी पूछ रहा है कि क्या हम बात करते वक्त मास्क नीचे कर सकते हैं और फिर हम उसको वापस ऊपर कर सकते हैं? ये Practically you see कॉमन people doing that. ये नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आई मीन Yes. नथिंग टू लाफ अबाउट। No, बट no, no. ये जो कॉमनली जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, जिनको Right. आदत नहीं होती है ना, वो यूजुअली ऐसा करते हैं। अभी मेरा कहर, मेरे क्लिनिक के यहाँ पे इतना कहर हो गया कि लोग मुझे बाहर ऐसे देख लेते तो मास्क पहन लेते, ऐसा हाल हो गया। तो आई थिंक इट्स नॉट कंफर्टेबल व्हेन यू यूज इनिशियली, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। मुझे पेशेंट का नाम कभी कभी समझ नहीं आता, वो बोलते हैं मुझे और मुझे समझ नहीं आता, तो फिर मास्क निकाल के बोलते हैं। तो अवॉइड दैट, आई वुड से अवॉइड दैट। ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि हैंड हाइजीन के अलावा और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइट, हेल्थ, बेदिंग, द अदर हाइजीन अराउंड द डिजीज? आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे मैंने बताया, मैं जैसे हैंड, आई मीन ग्लव्स में ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। आई इंश्योर कि हर पेशेंट के बाद में मैं हैंड वॉश करूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जब हैंड वॉश करते हैं, यूजुअली क्या होता है, आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड, एक मिनट तक हाथ घस लेते हो। ओके, आप सबसे पहले क्या करते हो, हाथ धोने के पहले क्या क्या करते हो, नल ओपन करते हो। ओके, वो ओपन करते हो, तो आपके अगर हाथ में लगा है ना, तो वो यहाँ पे लग जाता है। आप साबुन लेके, डेटॉल लेके या जो भी लेके आप वॉश करते हो। ओके, वो क्लीन हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, टैप को क्या करते हो, बंद करते हो। राइट। तो मतलब जो पहले लग चुका था, वो फिर से आपके फिंगर पे आ वापस गया, आए। बावजूद आपने किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब सोप लेता हूँ, मैं वो जो उसका जो टैप का जो फॉसेट है, मैं उसको भी साबुन से रगड़ लेता हूँ। फिर बाय द टाइम वो हाथ धोता हूँ, तब तक फिर पानी लेके फिर उसके ऊपर वो, जैसा हम करते हैं, उसको पानी से लेके क्लीन कर देता हूँ, एंड देन आई क्लोज, टू राइट। इंश्योर कि मेरा कांटेक्ट वो फॉसेट पे जो है, राइट। नो, वो ना हो। Right. So to be a little mindful when you're doing these small, यू small हैव टू बी actions वेरी around. माइंडफुल। मतलब मेरे Yeah. सिचुएशन में तो मेरे को इतना बारीकी से सोचना पड़ता है। Yeah. इट इट इट्स वेरी, मतलब काफी सोचना पड़ता था ये चीज में। Yeah. Yeah. तो एक और क्वेश्चन है, what are the additional precautions can a banker take since they are interacting with people day in day out? A सॉरी, कैन यू banker. रिपीट द क्वेश्चन? So the question is, what additional precautions can a banker take, or a बैंकर? person working in a bank, because they are interacting with a lot of people every day, and lockdown में भी वो जा रहे हैं, तो what are the kind of precautions they take in addition to wearing a mask, of course? आई थिंक फेस शील्ड पहनना बेटर रहेगा। Okay. फेस शील्ड, मास्क के साथ में अगर फेस शील्ड रहेगा, तो आई थिंक दैट विल गिव यू मोर Additional प्रोटेक्शन, precaution. Yes. प्रिकॉशन। आई थिंक मैं भी बैंक में जा चुका हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे रहता है जो काफी स्ट्रिक्ट है, जो मुझे भी चिल्ला चुका है कि सैनिटाइजर लो, तो सैनिटाइजेशन आई थिंक एवरी बैंक डज। जैसे एंटर होता है तो हमें सैनिटाइजेशन मिल जाता है, यू कैन रब ऑफ, एंड या आई थिंक फेस शील्ड लेंगे तो थोड़ा और प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बैंक में आई थिंक एयर जो वेंटिलेशन जो है वो सेंट्रलाइज एसी है। हाँ जी। तो तो वो सब ठीक है, उसमें फ्लो तो रहेगा ही, उसको वी कांट डू एनीथिंग, बट आई थिंक फेस शील्ड रहेगा तो बेटर है। एंड कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। एक हैंडी सैनिटाइजर रखो अपने पास, वो थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, जैसा आपको लगा कि आपने कांटेक्ट किया है किसी के थ्रू, किसी के साथ, तो वो थोड़ा बहुत सैनिटाइजेशन मेंटेन कर सकते। आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर बार आप वॉश करो हाथ जाके, बट एक छोटा बॉटल रहेगा सैनिटाइजर का वो, और फेस शील्ड रहेगा, तो दैट शुड बी गुड इनफ। So then maybe add a face shield and use Yeah. hand sanitizer often. दूसरा एक interesting question है that we see a lot of hand sanitizers around. Which one is good? The semi-fluid, the spray one, बहुत तरीके आ गए हैं, कौन सा वाला बेस्ट है यूज करने के लिए? आई थिंक आपको ये ना देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग मंथ और डेट देखना रहेगा। Very जो कोई important. मैन्युफैक्चरिंग फेब के पहले का है ना, मतलब ये पैंडेमिक के पहले का प्रोडक्शन है वो, और वो आई थिंक आज के मार्केट में तो वो एग्जॉस्ट हो चुका है, वो बिक चुका है। अभी जितने नए हैं वो मोस्टली लिक्विड ही होते हैं,
मतलब कंसिस्टेंसी आप देखो तो इसमें पानी की तरह होता है। राइट। वो मैं पर्सनली प्रिफर नहीं करता हूँ, ऑल्दो आई सी के उसका जो डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का कंटेंट है वो 70 अबव होना चाहिए। कुछ में तो आजकल 90 भी आता है, वो दिखाने के लिए कि देखो हमारा 90 है, 70 से बेटर है, 80 से बेटर है। बट पर्सनली मैं जो प्रिफर करता हूँ थोड़ा ये जो डेटॉल का जो है, ये कंसिस्टेंसी इसका जो थिक है, आई प्रिफर दिस। And Dettol is not sponsoring us, okay? डेटॉल इज नॉट स्पॉन्सरिंग He दिस। is just saying his preference. या इट्स जस्ट अ Okay. प्रेफरेंस, बिकॉज So, मेरे पास जो पुराना था वो काफी अच्छा था। जो मेरे पास अभी मिल नहीं रहा है वो, क्योंकि अभी जितने मार्केट में है वो सब लिक्विड ही टाइप है। yeah, लिक्विड ही वो, इट्स फाइन, यू कैन यूज इट, बट आई प्रिफर पर्सनली टू बी कंसिस्टेंसी उसका थोड़ा थिक रहेगा, वो मैं प्रिफर करता हूँ। hmm. अभी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ सैनिटाइजर्स, आई विल टेक दिस अप। इट सेज, इज इट safe to spray diluted sanitizer on touch surfaces, even on grocery bags after they are delivered at home? तो अगर आपका ग्रोसरी बैग्स घर पे डिलीवरी आता है, क्या आप उसको स्प्रे करेंगे? ग्रोसरी बैग पर? हाँ, वो जो डिलीवरी बैग्स आता है आपका बिग बास्केट से या कहाँ से, इज इट सेफ टू स्प्रे देयर? I want to club one more question because it is related. It says that when the grocery comes home, we also put it in baking soda or hot water for cleaning. Is that correct? So Okay, दो this is क्वेश्चन interesting. है। या पहले आप बैग को स्प्रे करेंगे तो वो करना चाहिए क्या, और दूसरा वेजिटेबल्स को बेकिंग सोडा या गर्म पानी में डालते हैं? नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब बैग को स्प्रे करना है तो वो स्प्रे क्यों करना है? मतलब अल्टीमेटली इट्स कांटेक्ट। ओके, ये तो एरोसोल का मतलब, देखो आप जो भी ये चीजें करते हो तो इसमें आप पहले कैटेगराइज कर लो कि ये इसका ट्रांसमिशन होना है तो किस चीज से होना है। ये कांटेक्ट ट्रांसमिशन है या ये एयरबॉर्न या एरोसोल ट्रांसमिशन है? तो इस चीज में सबसे पहले आपको समझ आ गया होगा कि ये कांटेक्ट ट्रांसमिशन है। तो बैग तो मैंने बोल दिया है कि ये आप यूज मत करो। आप चाहिए तो एक बड़ा सा बैग ले लो, और जिसमें ये सब बैग्स है जो बाहर से आ रही है, उसको एक बैग में डाल के उसको थ्रो करना है या जो भी करना है वो करो। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको बैग को स्प्रे करो, बिकॉज वो आपको यूज नहीं करना है, वो तो आपको थ्रो करना है। तो बैग को रीयूज स्प्रे नहीं करने का करना है, कुछ बेसिक स्प्रे है। नहीं करना है, वो लॉजिक नहीं है उसका। ओके, सेकंड इज, जैसे वेजिटेबल है या फ्रूट्स है वो जब बाहर से आते हैं तो उसको बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा या गर्म पानी में धोते हैं, तो क्या वो सही है? ओके, इसका बेकिंग सोडा का मैं कुछ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एवर कम अक्रॉस, तो मैं इस पे शायद कुछ टिप्पणी नहीं दे दिस इज पाऊंगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। नहीं, seriously, I don't have any answer to that because I don't know why baking soda and what is the logic. I'll Okay. need to find out maybe after I do that. Maybe I'll post an answer on the forum that we may have. Yeah. बट या क्लीनिनेस, क्लीन करना बेटर है, गर्म पानी से आप क्लीन कर सकते हैं, आप कीजिए उसमें, लेकिन ऐसा कुछ दूसरा सैनिटाइजर मत डालिए। मतलब आई डोंट नो लोग क्या कर रहे हैं यूएस में, तो काफी कंपनीज को बोलना पड़ा कि आपको ये कंज्यूम नहीं करना है, दिस इज लाइक डिसइंफेक्टेंट। मतलब वो लेवल पे लोग इतना साइकिक हो गए थे कि वो लोग ने सोचा कि ये कंज्यूम भी कर सकते हैं सो दैट वायरस मर जाए। तो प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आई थिंक बेसिक जो गर्म पानी से आप कर सकते हो दैट इज फाइन। या बहुत लोग, अल्टीमेटली समवन हैज आप आल्सो रिटन नमक डाल के करेंगे, सॉल्ट डाल के करेंगे वॉश। तो आई थिंक इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस of using salt and water and washing the vegetables with that. Okay. The मिल्क other पैकेट, आई सी वन क्वेश्चन एज मिल्क milk, पैकेट, आई yeah, थिंक ये इंटरेस्टिंग है। या how दिस इज to इंटरेस्टिंग। sanitize milk packet, yeah. आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा बैग जो 1 लीटर का, हाफ लीटर का पूरा स्प्रे मार के आगे पीछे पूरा सैनिटाइज करो। वो करना मतलब फिजिबल नहीं है, इतना वेस्टेज होगा। बट मिल्क का जो पैकेट है उसको हम कट करते हैं, राइट? तो वो जो पोर्शन है उतना probably that part, that triangular part, maybe you can sanitize and then you pour in your vessel.
and then throw away that packet. So maybe जहाँ से काटते हैं उसको आप सैनिटाइज करके फिर काट के फिर पोर कीजिए। एक I और think wash with soap. I think soup auto correct हो गया, but I think soap what he meant. हाँ तो सोप soap इज को clean कर सकते हैं. That is fine. ओके, बट That अच्छे is से क्लीन कीजिए बिकॉज नहीं तो you'll be eating all the soap in your body. The other question is, how about keeping an emergency COVID kit at home? It is difficult to get admission to get tested. sorry, what? Emergency How what? about how about an emergency COVID-19 kit to be kept at home? It is What is an difficult. emergency COVID kit? नहीं पता. Bhavika, can you please clarify on your question? जब तक we'll take the next question till Bhavika clarifies what does she mean by emergency COVID kit. The other question is, how does the virus spread if I'm buying quickly from a vegetable vendor in open air? What is the risk buying from medical stores? So I think we already touched base the vegetable vendor point. The other is, how do we differentiate between COVID symptoms with common cold as allergy, which begin during monsoon, particularly for kids? So COVID Yeah. So symptoms और allergic symptoms जो monsoon में होते हैं उसमें difference हम कैसे बता सकते हैं? commonly, see, I would not go into detail like medically into details, but allergic जो होता है उसमें runny nose होता है, sneezing होता है. Right. These are the common symptoms. तो ये कोविड में ये नजर नहीं आया अभी तक. इतना ज्यादा तो नहीं. मैं हार्डली कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसका रनी नोज हो. कॉफ भी जो होता है वो ड्राई कॉफ होता है और वो लेटर थोड़ा सिम्टम डेवलप होने के बाद होता है. बट Right. जैसा एलर्जिक होता है ना, तो एलर्जिक में सी बॉडी का क्या मैकेनिज्म है, सिंपल तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी एलर्गन है, जो एलर्जी कॉज करने का जो फॉरेन पार्टिकल है, वो बॉडी में जब जाता है तो बॉडी डिटेक्ट कर पाता है, उसको पहचान पाता है कि ये फॉरेन बॉडी है. Right. तो उसको निकालना है बॉडी से. तो उसको जब निकालना है तो वो कैसे निकालेगा? एक होता है छींक, जो आप छींक से वो बाहर फोर्सफुली निकल जाता है. दूसरा होता है सिक्रीशन. अब सिक्रीशन क्या होता है कि जो फ्लूइड जो होता है वो उसके साथ बह के निकलता है. Right. तो ये एलर्जिक जो राइनाइटिस होता है इसमें एक स्नीजिंग आता है और रनी नोज आता है, Right. जो मोस्टली कोविड में नहीं नजर आया है. Right. So एक और क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं कि how far steam inhalation will benefit? Steam Sorry, what? inhalation भाप Steam लेने inhalation. से steam inhalation से कितना बेनिफिट होता राइट. स्टीम इनहेलेशन, अब कुछ लोग उसमें विक्स डालते हैं, कुछ लोग उसमें नमक डालते हैं, कुछ लोग प्लेन लेते हैं. तो स्टीम इनहेलेशन इज नॉट बैड. मतलब वो लेने से आपको कुछ नुकसान तो नहीं होता है. बट आप ये सोच के चलो कि बंदा ब्रेथलेस है, उसको सांस थोड़ी फूल रही है, तो स्टीम इनहेलेशन लेगा तो बेटर होगा. ये जरूरी नहीं है, ये फायदा नहीं करेगा. अगर उसका, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन पे गए कि एलर्जिक राइनाइटिस है या उसको ऑलरेडी कुछ तकलीफ है, ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गले में दर्द है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो स्टीम इनहेलेशन थोड़ा बहुत इफेक्ट हेल्प करेगा वो इफेक्ट लाने में, उसको सिम्टम्स इंप्रूव करने में. उससे नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है तो वो करने का मतलब नहीं है कुछ. आई कैन नॉट हियर यू, हेमा. So I'm saying that तो steam inhalation का really COVID prevention से कोई direct relation अभी तक study नहीं किया गया है. But if they want to take steam inhalation for allergy and other symptoms, they can go ahead and do that. Is that right? या स्टीम इनहेलेशन आप ले सकते हो, बट देखो बात ये है कि अगर वो पेशेंट को ब्रेथलेस हो रहा है तो आप ये, उसको ऑक्सीजनेशन की कमी है, स्टीम से कुछ नहीं होगा. स्टीम से ऐसा नहीं है कि वो एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें कितना फायदा होएगा ऐसा प्रूवन तो नहीं है, ऐसा कोई स्टडी तो नहीं कह रहा है. Right. बट अगर ब्रेथलेस ज्यादा है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो स्टीम इतना हेल्प नहीं कर पाएगा. Right. फिर एक और क्वेश्चन है कि आई एम अस्थमाटिक, मुझे अस्थमा है, कैन आई वेयर अ फेस शील्ड इंस्टेड ऑफ अ मास्क?
मास्क नहीं पहनूं और खाली फेस शील्ड पहनूं तो इनफ है क्या? राइट। तो आई थिंक देखिए अभी ऐसी बात है, एस्थमेटिक ऑब्वियसली वो मास्क पहनने से उनको काफ़ी दिक्कत होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे एस्थमेटिक है, दे माइट ट्रिगर, इट माइट ट्रिगर एस्थमेटिक अटैक बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। सो इन दैट केस प्रोटेक्शन अगर फेस शील्ड का लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर उन पेशेंट्स को लगता है कि मुझे, और बेसिकली क्या होता है अस्थमा में ब्रीदिंग का इश्यू रहता है, तो Right. अगर आपको फेस शील्ड नहीं मिलता है, आपको मास्क यूज करना है, तो आई वुड से कि मे बी वो मास्क आप नीचे ले सकते हो सो दैट यू आर एबल टू ब्रीथ, बट देन वो रिस्क बढ़ जाता है। तो Right. इसलिए फेस शील्ड यूज करना विल बी बेटर। Right. Okay. Now there's another question which says, do you advise to get tested if we see mild symptoms? अगर mild symptoms हम देखें तो क्या हमको टेस्टिंग करा लेना चाहिए? अभी टेस्टिंग का भी क्राइटेरिया ऐसा देखा जाए ना, मुंबई में काफी चेंज हुआ है। हम्म. इनिशियली देयर वाज सम टेस्टिंग क्राइटेरिया, उसके बाद में टेस्टिंग क्राइटेरिया काफी चेंज हुआ है। मतलब बीएमसी की तरफ से भी काफी चेंज हुआ है। लेटेस्ट जब हमें अपडेट मिला था तो उन्होंने बोला था कि असिम्टोमेटिक को तो टेस्ट ही नहीं करना। हम्म. तो ये सब चीजें काफी चेंज होती है डे टू डे बेसिस पे, मतलब वीकली बहुत थोड़े थोड़े दिनों में चेंज होते रहती है। तो Yeah. फिलहाल टेस्ट करना मतलब सिम्टोमेटिक, अगर पेशेंट है माइल्डली सिम्टोमेटिक है तो वो हमें नहीं पता कि वो रियली कोविड है या वो यूजुअल कोई कुछ और चीज है। तो जो भी टेस्ट करना चाहता है तो उसको बेसिकली एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लगता है और लैब का एक फॉर्म होता है वो भरना होता है। तो वो फॉर्म का एक स्टैंडर्डाइज आईसीएमआर का क्राइटेरिया है जिसमें सिम्टम्स मेंशन किया जाना चाहिए बाय द डॉक्टर कि एग्जामिनेशन में इसको फीवर था, इसको कॉफ था, इसको डायरिया था, वट। तो वो फॉर्म अगर आप फिल कर लेते हो डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर के थ्रू, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे वो एडवाइज है, देन ओनली यू कैन डू। ऐसा ही कोई भी लैब में जाके वो टेस्ट नहीं कर सकता है। Right. दे नीड अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड Prescription. द फॉर्म फ्रॉम द लैब। Yeah. So you need a proper prescription for doing the lab test. और दूसरा. माइल्ड सिम्टम है, टू हम्म. आंसर कंप्लीट दैट क्वेश्चन, अगर माइल्ड सिम्टम है, आप टेस्ट करना चाहते हो, आपको टेस्ट करने की इजाजत मिल गई है डॉक्टर से, आप हम्म. टेस्ट करते हो। अगर वो नेगेटिव आते हैं, गुड, ऑल गुड, यू आर फाइन। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसमें अभी करंटली आई थिंक बीएमसी, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, आई एम नॉट अवेयर ऑफ अदर सिटीज, बट मुंबई में ऐसा है कि अगेन यू नीड टू सी कि वो उसका अपार्टमेंट कैसा है, मतलब वॉशरूम बाथरूम सब घर में ही है। अगर वैसी चीज है तो इफ इट इज माइल्डली सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक तो वो होम क्वारंटीन होते हैं। अगर Okay. वो कॉमन ये रहता है, कॉमन एरिया होता है टॉयलेट का, बाथरूम का, तो फिर उसके लिए उनका सेंटर्स है, क्वारंटीन सेंटर्स, जहाँ पे वहाँ रहना पड़ता है। Right. Right. तो एक और क्वेश्चन है, फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट व्हाट मेडिसिन्स कैन वी टेक एट होम? तो ये तो मैं भी बोल और सकती हूँ कि हम मेडिसिन कॉल पे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा फॉर knowing what specific medicines you should be taking. Okay, another interesting question is, how can we sanitize currency note? तो करेंसी नोट जब पैसे हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं? राइट, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सैनिटाइज कैसे करना है, देखो अभी हमें पता नहीं। अगर आप करेंसी लोकल जैसे कुछ बाय करते हो, वो करेंसी की बात करें तो वो तो मुश्किल है, आई डोंट नो। बट मैं ये बोलूंगा कि आप अलग से एक सेफ रखो, मतलब एक वॉलेट है या पर्स है या जो कुछ है, एक सेफ रखो जहाँ से ये करेंसी आप जो यूज करते हो, जो बाहर से करेंसी आती है, जैसे आप जो नॉर्मल मार्केट में अगर कुछ यूज कर रहे हो या दुकानदार से कुछ सब्जी वाले से यूज कर रहे हो, तो उसको सेपरेटली रखो। ओके, उसको ऐसा दूसरे नोटों में मिंगल मत करो, वो अलग से ही रखो और उसी को यूज करते रहो। आप सैनिटाइज करके इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हर नोट को आगे पीछे, बिकॉज आपको नहीं पता। अगर आप बंडल की बात कर रहे हो, 100 रुपीज का सपोज 100 नोट्स है, आपको वो नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ जा चुका है। तो इट या. डजेंट मेक सेंस कि आप एक एक नोट को स्प्रे करो, आई डोंट नो, वो इट्स रियली अनलेस यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट दिस कोविड थिंग। I think the best idea is to keep it separately
और Yeah. उसी में से यूज करो। आप Yeah. नोट को हाथ लगाते हो, आप हाथ जब भी नोट को हाथ लगाते हो आप सैनिटाइज कर लो, हैंड सैनिटाइजर सैनिटाइज कर लो, राइट। सो दैट अगर कुछ लगा भी होगा तो वो सैनिटाइजर से निकल जाएगा। So ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वन मोर वी हैव, इज नॉनवेज परमिटेड? क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं? नॉनवेज, हाँ, अब अगर बंदा नॉनवेज ऑलरेडी खा रहा है तो वो खा सकता है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन को नॉनवेज खाना है या ऐसा कुछ। आई डोंट थिंक, इट डजंट मैटर, बिकॉज मीट इज कुक्ड। अपना कंट्री ऐसा है कि हम रॉ नहीं खाते। देर आर सम कंट्रीज, चाइना, जापान, दे ईट रॉ रॉ मीट। तो हमारे यहाँ पे जितना ज्यादातर लोग लेते हैं वो कुक्ड फूड है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई हर्ज है ओके। खाने में। Okay. So next question is, what are the chances of getting virus if we already have cold? अगर पहले से runny nose है तो वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने की कितने चांसेस है? क्या चांसेस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सही, अगेन, ऐसा नहीं है कि आप ससेप्टेबल ज्यादा हो जाओगे अगर आपको ऑलरेडी अदर नॉर्मल किस्म का कुछ वायरल है, रनी नोज है, तो आई डोंट थिंक उसमें आप ससेप्टेबल ज्यादा हो जाओगे। देयर इज नो, आई मीन, वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी डेटा व्हिच सेज के इन सच सिचुएशन यू बिकम मोर ससेप्टेबल, सो Okay. it doesn't, I mean, I don't think there's any more susceptibility in that case. Okay. So the next question is, मोबाइल फोन्स सबसे बड़े पोटेंशियल कैरियर्स है क्योंकि हम लोग सब जगह उसको कैरी करते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, उसको कैसे सैनिटाइज करें या मेंटेन करें? हेलो, हेलो, आई थिंक आई लॉस्ट यू इंतजार। ओके, आई थिंक इंतजार हैज, उनका ड्रॉप हो गया है जूम इनवाइट, till of course he joins in. We will continue as soon as he joins in. Meanwhile, I'm going to read out एक क्वेश्चन था भाविका हिमानी जी का कि हम कोविड मेडिकल किट घर पे रख सकते हैं क्या? तो उन्होंने कुछ डिटेल्स दिया है किट के, जो पैरासिटामोल, बीटाडिन, विटामिन सी, D3, बी कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, आरोग्य सेतु ऐप, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो सब साथ में कॉम्बिनेशन बना के घर में रख सकते हैं क्या? क्वेश्चन है, प्लीज वेरीफाई। So I just want to say here that definitely we can have all these things put in together, and we can put them as a kit and keep it ready in our house. Of course, आप routine बना सकते हैं अपना, where you can definitely do breathing exercises in the morning and take supplements like vitamin C or B complex and hot water gargle and have warm drinks. ये सब बहुत intuitive सा, what do you say, tasks है. These are all intuitive tasks, and I think we can really take those up, you know, and we don't need a separate confirmation on that. If you keep it ready in your house, it's easily handy for you and you can actually use it on a day-to-day basis. Baki oxygen cylinder and all that, I don't know how normal public will be able to operate that, because not everybody has that expertise of using the oxygen cylinder if you keep it at home. और एक ऑक्सीजन सिलेंडर में यू वोंट, आई मीन द अमाउंट इज नॉट इक्वल टू योर रिक्वायरमेंट, तो वो आपको समझेगा नहीं कि बॉडी वेट के हिसाब से कितना ऑक्सीजन लेना है, जब तक कि आपके घर में कोई डॉक्टर है या आजू बाजू कोई डॉक्टर है। तो ऑब्वियसली वी डू नॉट रिकमेंड कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रखो, because it may not be the best case scenario, really speaking. So we have other questions like, how do we sanitize newspaper? Newspapers, we would take it equivalent to say sanitizing of your notes.
wherein you maintain a separate place where you can actually keep your newspapers, and then actually bring your newspapers and read it, sanitize your hands, and वापस newspaper को वही जगह रख दो. आप अगर न्यूज़पेपर को स्प्रे करने जाएंगे तो आई डोंट नो हाउ फार दैट विल रियली वर्क फॉर यू. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन which just give me 2 minutes. The internet is a little unstable. Okay, Intezar is back on Zoom. Just give me 2 minutes because just logging in, my internet also got logged off. Just give me 2 minutes. Huh? I'm just logging in. Okay. So somebody in the panelist is asking if we can take 50 participants. Yeah, just give me a moment. Yeah, Intezar. Intezar, can you hear us? Okay, are you guys able to see me? Okay, yeah. Yeah, we can see. I'm sorry, I think the internet connectivity is really slow here, and that's why we kind of all of us dropped off. So, yeah. Okay. So, one of the question was similar, which said that how can I use, can I wash everything in washing powder? And yeah, how do we sanitize newspapers? Can you hear us? Hello? Can you please recommend any tablet to improve the immune system? So see, prescription of tablets will not happen on a Zoom call for sure, because that is something what we are not allowed to. But yes, definitely you can have vitamin C, which is a very good source of boosting your immunity. Plus, you can also have a healthy diet. Make sure that you're exercising a little bit, which is a very important thing, especially because in lockdown, we all of us are at home, and the movement is got as minimum as possible. So make sure you do some stretching, maybe some Surya Namaskar in the morning, and some pranayam or breathing exercises, because that will definitely help you boost your immune system. Now, tablet per se, there are a lot of brands available of vitamin C. You can have a multivitamin as well. Generally, if your immune system is good, you don't need anything separately.
if you're having healthy diet and you have enough of proteins and you have enough of vitamin C onto your diet. Okay. So I'm not sure because when we dropped off, a lot of questions really went away. So I can see a few questions, which is, can I wash in washing powder? So I myself as a doctor can tell you that probably you can use washing powder or soap, but however we tend to avoid it because if you don't wash up the soap properly, you actually end up ingesting a lot of it. So if you're using soap, make sure that you really wash it and clean your vegetables or fruits whenever you're using them, right? Also, I have someone saying, can I take zinc daily? 50. So, yes, please go ahead and take multivitamins and vitamin C. But whether it's zinc or calcium, that is really not going to affect your immune system per se. It is having a wholesome diet plus having good vitamin C in your diet in any form, in the form of supplement or probably in the form of food, which is going to be supporting y'all and helping y'all. Okay, I see a lot of the questions have been answered here. Now, if you have further more questions, please drop it on the chat for people who are on Facebook, because the replay or the repost of this video is going to go on and we are going to be monitoring the comments. For people who are on webinar, you all can please go ahead and definitely post your further on the Facebook Live invite, on the replay of the post, because we are going to be monitoring the questions for a period of a week, and we are going to be replying to each and every question on that particular video. And I hope this, I know Intezar dropped off and the video basically is not, the video quality is not so great. However, we tried our best to kind of be helpful and as far as possible cover your questions. So I hope it was contributive to you. And if you want specific topics, awareness on this particular disease, please put it in the chat of the Facebook Live and we will look at it and see how we can cater to them really. So, though Intezar is not here, I really thank Dr. Intezar for coming down and accepting this invite to make this video for all of us. We wanted to do our bit as doctors. And one message that I'm sure he would also want, and I say that on behalf of him and me, we want to see you all also take up hygiene and boosting up your immunity as a challenge. So, opening of lockdown does not tell us that the disease has disappeared. It tells us that we have to be more careful and also take proper steps towards hygiene and ensure our immunity builds up 2% every month. So that is the only currency that we have right now. So thank you so much, all of you, and really appreciate that you all showed up on a Sunday afternoon, and look forward to speaking to you once again. Thank you so much. I'll take your leave now. Bye.